अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं दो मेन मौज़ूआत पे, जिनमें से एक होगा कि क्या वो लोग जिनको कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है जैसे खांसी नज़ला, क्या उनको भी कोरोना हो सकता है? और दूसरा हमारा अहम सवाल होगा कि अगर कोरोना है तो उसको टेस्ट कैसे करवाया जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों को अपेरेंटली इस चीज़ में मसला आ रहा है कि मार्केट में या यूँ समझिए हॉस्पिटल्स में कितने किस्म के टेस्ट हैं जो आप करवा सकते हैं। तो जो पहला हमारा सवाल है कि वो लोग जिनको कोई सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं है, क्या उन लोगों को भी कोरोना हो सकता है? तो उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जो कि हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो लोगों के लिए बनाई है, और ये वीडियो जो है कम्प्लीटली उन्हीं की कर्टेसी है। तो हम सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या वो लोग जिनको सिम्टम्स नहीं है क्या उन्हें भी कोरोना हो सकता है या नहीं। तो चलिए जी, सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। The majority of transmission that we know about is that people who have symptoms transmit the virus to other people through infectious droplets. But there are a subset of people who don't develop symptoms. And to truly understand how many people don't have symptoms, we don't actually have that answer yet. So when we say asymptomatic, we mean somebody that does not have symptoms and does not go on to develop symptoms. Truly no symptoms. We know a number of them who are reported as asymptomatic actually may have mild disease. They may go on to develop symptoms. They may not quite register that I'm sick. You know, I just feel a little bit unwell. I'm just a little bit under the weather. I'm feeling a little bit fatigued. And some of those individuals we would classify as pre-symptomatic, which means they have not yet developed symptoms. We know from some of the viral shedding studies from some of the lab work that there are people who are infected with COVID-19 that can be PCR positive, that can test positive 1 to 3 days before they develop symptoms. And that's something that we've known for quite some time now. What we need to better understand, and this is one of the major unknowns, is what proportion is contributing to transmission. When you sing or you're shouting in a nightclub because you can't hear your friend and you're saying, can you hear me? And you're close by and you're projecting your voice at someone, then it's clear that in that situation, if the virus is present in your upper respiratory mucosa, then there's every likelihood that you can project that virus. The last couple of days have been the highest number of daily cases in the world. So in terms of pandemic generation, we are still very much on the upward climb on this mountain. But what some countries have shown, many countries have shown, is if you go at this in a very systematic way and you use a comprehensive approach, that there is enough stoppability in the virus. We've seen that with the physical measures, social distancing. We've seen it with surveillance, and we have some choices to make as a society, because it is clear if we can identify cases and their contacts, and we ask those contacts to quarantine themselves, and we support them in that quarantine, that can be a very successful way of both stopping the disease and avoiding large-scale lockdowns in future. तो जैसे कि आपने ये वीडियो देखी, और इसमें WHO ने क्लियरली ये बताया हुआ है कि काफ़ी ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें कोई सिम्टम्स नहीं है बट उन्हें कोरोना हो सकता है, उन्हें COVID-19 पॉजिटिव आ सकता है। तो अभी हम बात करते हैं COVID-19 की टेस्टिंग मेथडोलॉजीज़ के ऊपर। तो आप लोग मेरी स्क्रीन पे कुछ चार्ट्स देख सकते होंगे। इन चार्ट्स में मौजूद दो किस्म के टेस्ट हैं। एक कहलाया जाता है PCR या मॉलिक्यूलर टेस्ट, दूसरा कहलाया जाता है स्वैब टेस्ट या फिर सेरोलॉजी टेस्ट या फिर ब्लड टेस्ट। ये तीनों एक ही टेस्ट के नाम है। तो हम इन दोनों टेस्ट को वन बाय वन जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि इन टेस्ट में है क्या और एक्चुअली हमें क्या बताते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टेस्ट है वो है PCR या मॉलिक्यूलर टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है कि आप लोग के नाक या मुंह से जो है स्वैब के थ्रू आपके सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। आप लोग तस्वीर में देख भी सकते हैं कि उसके नाक और मुंह के जो है ना थ्रू उसके सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। और देन बाद में जो हमारे क्लिनिकल एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उन सैंपल्स के थ्रू कोशिश करते हैं कि हम इसमें जो COVID-19 का RNA है या यूँ कह लेंगे उसका जो स्ट्रक्चर है वो देखें कि इन सैंपल्स में मौजूद है या नहीं है। अब इसमें मसला क्या आता है कि बाज़ औक़ात वो जो सैंपल लिया गया है वो इनफ नहीं होता।
तो इसमें क्या होता है, बाद अगर आपके टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है लेकिन वो एक्चुअली नेगेटिव नहीं होता, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ योर सैंपल्स। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि किसी भी टेस्ट का जो एक्यूरेसी रेट है वो 100% नहीं है। और सेम गोज़ विद PCR। अच्छा जी, PCR एक्चुअली हमें क्या बताता है? PCR का जो रिज़ल्ट होता है वो हमें ये बता रहा होता है कि इस वक्त एट द मोमेंट आपके बॉडी में कोरोना-19 या कोविड-19 के जो RNA है या कोविड-19 आपकी बॉडी में एक्टिव है या नहीं है। मतलब एट द मोमेंट की बात कर रहा होता है कि अभी आपकी बॉडी में कोविड-19 के जो है वो असरात हैं या नहीं है, वो एक्टिव है या नहीं है। ये हमें ये नहीं बता रहा था कि पास्ट में कुछ हुआ है या नहीं, ये अभी की बात कर रहा होता है। तो PCR कंपैरेटिवली बाकी टेस्ट के ज़्यादा बेहतर है करवाना, क्योंकि इससे आपको पता चल सकता है कि अभी आपकी कंडीशन क्या है। तो आगे चलते हैं और इसके बाद हमारा दूसरा टेस्ट होता है। जो दूसरा टेस्ट है उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी टेस्ट या फिर सीरोलॉजी टेस्ट या फिर ब्लड टेस्ट। ये बहुत सिंपल एक टेस्ट होता है। इसमें एक्चुअली क्या करते हैं, क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज जो होती हैं वो क्या करती हैं कि आपका ब्लड टेस्ट करते हैं। ये एक स्ट्रिप के थ्रू होता है। ये आप स्ट्रिप मेरी वीडियो पे स्क्रीन पे देख भी सकते होंगे। ये स्ट्रिप मोर और लेस प्रेगनेंसी टेस्ट के स्ट्रिप की तरह है और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी इतना ही ईजी होता है। इसका रिज़ल्ट 15 से 20 मिनट में आ जाता है। और ये जो टेस्ट है ये वाइडली अवेलेबल है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये ईजी है और आप लोग खुद भी कर सकते हो और क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज में भी ये टेस्ट किया जा रहा है। अच्छा, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस टेस्ट में एक्चुअली होता क्या है। इस टेस्ट में एक्चुअली क्या होता है कि क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज़ में ये चेक करने की कोशिश की जाती है कि आपके ब्लड में आपकी बॉडी ने कोई एंटीबॉडीज़ जनरेट की है या नहीं। अब एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ यूँ कह लें कि एक फ़ौज है जो आपकी बॉडी बनाती है और वो फ़ौज जो है वायरस और बैक्टीरिया से लड़ती है। जब भी आपकी बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया आता है तो वो जो फ़ौज होती है, वो एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो उससे लड़ते हैं और एट द एंड उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो इस टेस्ट के थ्रू हमें ये पता चलता है कि क्या हमारी बॉडी ने कभी वो एंटीबॉडीज़ जो कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए चाहिए, क्या वो पैदा की हैं। कि अगर वो पैदा की हैं तो इससे हमें पता चलता है कि कभी किसी टाइम पे, आज नहीं बल्कि कुछ टाइम पहले हमें जो है कोविड-19 था और हमें पता चला या नहीं, वो एक अलग मामला है। तो दो तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं, एक होता है IgG और एक होता है IgM। तो आपकी जो बॉडी है वो सबसे पहले जो एज अ रिस्पॉन्ड IgM बनाती है। IgM का क्या मतलब होता है कि IgM जो है वो डॉक्टर्स कहते हैं कि 5 से 9 दिन के दरमियान जो है आपकी बॉडी एज अ रिएक्शन, एज अ कोविड-19 के रिएक्शन, वो IgM जो है वो क्रिएट करती है आपकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज़। और फिर उसके बाद आगे चल के 10 से 25 दिन के दरमियान जो है वो IgG प्रोड्यूस होता है। ये वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बाद में एज एक्स्ट्रा कवर क्रिएट की जाती है आपकी बॉडी के थ्रू। तो यूँ कह लें, अगर इस टेस्ट के रिज़ल्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें 4 किस्म के रिज़ल्ट आ सकते हैं। एक तो कंट्रोल लाइन आना, जैसे कि मैंने आपको टेस्ट की किट दिखाई थी स्टार्ट में, मैं अभी भी दिखा रहा हूँ। इसमें 3 किस्म के लाइंस, एक है C जिसको हम कंट्रोल लाइन कहते हैं, एक है M जिसका मतलब है कि IgM जो है वो प्रोड्यूस किया गया था आपकी बॉडी में, और तीसरा है IgG जिसका मतलब है IgG एंटीबॉडी जो वो आपकी बॉडी में क्रिएट की गई थी। तो अगर तो आपकी लाइन सिर्फ C पे आती है, इसका मतलब कि आपकी कंट्रोल लाइन आ गई है और आपकी बॉडी में किसी भी किस्म का एंटीबॉडी जो है वो नहीं क्रिएट किया गया, जिसका मतलब है आपको कभी भी कोरोना नहीं हुआ। फिर अगर हम दूसरे रिजल्ट की बात करें तो जिसका मतलब है IgM, अगर IgM और कंट्रोल लाइन ये दोनों लाइंस आती हैं, इसका मतलब टेस्ट सही परफॉर्म कर रहा है, कंट्रोल लाइन भी आ गई और IgM लाइन भी आ गई, जिसका मतलब कि आपकी बॉडी ने IgM एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की थी। इसका मतलब है कि आपको कोरोना हुए हुए कोई 5 से 9 दिन हो चुके हैं। और अगर तीसरा रिज़ल्ट हम देखें जिसमें IgG आता है और IgM दोनों और कंट्रोल लाइन तीनों लाइंस आ जाती हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में IgG और IgM एंटीबॉडीज़ सब प्रोड्यूस की जा चुकी हैं, जिसका मतलब है आपको कोरोना हुए 10 से 15 दिन या 20 दिन हो चुके हैं। और लास्ट रिज़ल्ट है, अगर आपकी कंट्रोल लाइन और IgG लाइन आ रही, IgM नहीं आ रही, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में IgG इस वक्त मौजूद है और IgM जो है वो अपना काम करके ख़त्म भी हो चुकी है वो एंटीबॉडी। तो इसका मतलब आपकी बॉडी को कोरोना हुए 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं। ये जो मैं टाइम डेज बता रहा हूँ, विंडोज़ बता रहा हूँ, ये काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी डॉक्टर्स को सुनने के बाद मैं बता रहा हूँ, और ये वेरी कर सकती है पेशेंट टू पेशेंट, क्योंकि हर पेशेंट का इम्यून सिस्टम डिफरेंट वे में काम करता है। और एक लास्ट रिजल्ट ये है कि अगर आपकी कोई भी लाइन नहीं आती, इसका मतलब ये है कि वो जो टेस्टिंग किट है
वो सही काम नहीं करेगी, क्योंकि कंट्रोल लाइन का आने का मतलब ही ये है कि वो टेस्ट किट जो है वो सही काम कर रहा है। तो ये थी डिफरेंट टेस्टिंग मेथडोलॉजीज़ के ऊपर। आखिर में हम ये बात करते चले कि पाकिस्तान में क्योंकि ये मसला है तो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे काफ़ी लैब्स जैसे चुगताई लैब है, आगा खान लैब है, ये लोग PCR कर रहे हैं, लेकिन हर जगह नहीं। और जो ब्लड सैंपल टेस्ट है या जिसको सेरोलॉजी या एंटीबॉडी टेस्ट कहा जाता है, वो हर जगह ही हो रहा है ऑलमोस्ट। और PCR के लिए इस वक्त क्योंकि हमारे पास किट्स कम हैं और हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा पेशेंट इनफ्लो है, तो ये अभी काफ़ी जगह नहीं हो रहा और इसलिए काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा का टाइम मिल रहा है। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है, उसने कल ही जो है वो आगा खान से कांटेक्ट किया था इस टेस्ट के लिए और उसको 26 जुलाई की डेट दी गई है, विच इज़ ऑलमोस्ट 1.5 मंथ अवे। तो ये इस वक्त के हालात हैं पाकिस्तान के, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों टेस्टिंग मेथड समझ आए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई सवाल रहता है या कोई ऐसी चीज़ जो आपको कंफ्यूज कर रही है तो आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। मैं कुछ लिंक्स नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा और आप वहाँ से भी रिसर्च कर सकते हैं, फर्दर इनके बारे में जान सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको जो है मेरी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और ये एक बेसिक सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको मेथड समझाने की कोशिश की है। तो इसी के साथ मेरी वीडियो का अख्तिताम होता है और हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।